हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू स्टूडेंट्स? यस, आई नो वेरी वेल एंड यू हैव लॉट्स ऑफ एंजॉय विद योर पेरेंट्स एट योर होम. सो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का बहुत मज़े फ़ायदा उठा रहे हैं बिकॉज आपको स्कूल नहीं आना पड़ता है, सिर्फ घर पर बैठ के पढ़ना होता है और अपने पेरेंट्स के साथ रहना होता है. वेरी गुड. लेकिन बेटा जी, ये भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे बिकॉज COVID-19 is very dangerous things and very serious disease. Okay, so please stay home and stay safe. So students, let's start with our study. Welcome to online video class at Little School at Home. Students, make sure that you have your computer textbook with you with all the time while attending the class, and please take next 5 seconds to keep your book ready. 5, 4, 3, 2 and 1. Student, I hope you all are ready. Yes or no? Yes, I know student. You are very good students and this is my favorite class, 4th class. Very good. So students, let's get started with today video. Okay, this is Poonam Bhatti from Little School, and as you know that I am your computer teacher. So let's get started. Today we are going to cover the day 5, okay, of your revision of first chapter. So let's get started with the revision of first chapter. This is your first chapter, histories of computer. So in the history of computer we already covered the most of topics of your computer textbook. For example, we already revised the earlier computing device, the mechanical counting device, the electromechanical counting device, the electronic counting device. Now in the previous video we already covered the two modern digital electromechanical counting device, that is the calculating device, that is the ABC Atlas of Berry computer, and second one is the Z3. Okay, so today we will revise the next other modern counting device we will discuss in this video. Okay students, let's get start. First of all, I want to share that your computer textbook has been covered these topics, okay, in the chapter first. So we already covered the earlier calculating device, mechanical counting device, electromechanical counting device, electronic counting device, modern calculating device or digital computers, okay, and the first digital electronic computer, that is the ABC, we already covered. Now today we will discuss about the other topic of modern calculating device, that is the hardware Mark I or the ANIVAC and UNIVAC. So let's learn about these topics, ANIVAC and UNIVAC. Okay, so student, after the invention of ABC and Z3 computer, the Harvard Mark I will come. Okay, has come. Okay, in this computer, this is also similar to the Z3 and ABC, also first programmable computer, but it is heavy in weight and large in size. Okay, इस ये कंप्यूटर आपके जो हमने प्रीवियस ABC और Z3 पढ़े हैं, ठीक है, उसी की तरह से फर्स्ट ये प्रोग्रामेबल रीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं कंप्यूटिंग, लेकिन ये हमारे डिफरेंस क्या है, ये हैवी इन वेट होते हैं हमारे, ठीक है, साइज़ में बड़े होते हैं, ठीक है. तो इसी के बाद जो डेवलप हुआ, इसी की जो हमारे पास थोड़ी सी जो डिसएडवांटेज है उसको रिड्यूस करने के लिए इसके बाद आया था हमारे पास एनिविक एंड यूनिवैक. सो लेट्स लर्न अबाउट द हार्वर्ड मार्क आई फर्स्ट. ओके, हार्वर्ड मार्क आई, हैव यू सीन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स? क्या आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं? यस, दिस इज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विच इज़ नोन एज हार्वर्ड मार्क आई. ओके, ये एक तरीके का कंप्यूटर है जिसका नाम दिया था हार्वर्ड मार्क आई.
Now the Harvard Mark I computer was built in partnership. ये जो कंप्यूटर बिल्ट हुआ ये पार्टनरशिप पर बिल्ट हुआ, पार्टनरशिप बिटवीन द हार्वर्ड एंड IBM. ओके, हार्वर्ड और IBM की पार्टनरशिप पर ये कंप्यूटर बिल्ट हुआ था, बना था इन 1944. अब आ गए ना 20th सेंचुरी पे, हम सारे जितने भी पढ़े हैं हमने वो सारे 20th सेंचुरी के पढ़े. तो इट वाज बिल्ट इन 1944 and it was built in partnership between the Harvard and IBM. Okay, this was the first programmable digital computer developed. जो हमने ABC पढ़ा था और Z3 पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉनिक था, अब ये है डिजिटल कंप्यूटर. द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट. कहाँ डेवलप हुआ था ये हमारा? यूनाइटेड स्टेट में. तो बस आपको क्या क्या याद करना है कि ये डेवलप्ड हुआ पार्टनरशिप में. किस किस की पार्टनरशिप में? हार्वर्ड एंड IBM की. में कौन से ईयर में हुआ? 1944 में. फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था ये जो डेवलप्ड हुआ यूनाइटेड स्टेट में. ओके, बट was not a purely electronic computer. ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, ठीक है. द मशीन वेटेड 5 टन. जो मशीन का वेट था जो आपको दिख रहा है ये जो मशीन थी इसका जो वेट था वो 5 टन था. एंड हैड 500 माइल्स ऑफ वायर्स जो थी वो 500 माइल्स की थी, ठीक है. तो ये प्योरली हमने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं बोला इसको, क्योंकि इसका जो मशीन थी, मशीन का वेट था वो 5 टन था एंड हैड 500 माइल्स ऑफ वायर. इट वाज 8 फीट इन हाइट. इसकी जो हाइट थी ये दिस वन, ये थी इसकी 8 फीट एंड 51 फीट इन लेंथ. इसकी जो लेंथ थी वो 51 इन लेंथ, ठीक है. हाइट जो थी वो 8 फीट थी ऊंचा जो था, और जो लंबाई थी वो उसकी 51 फीट थी, ठीक है. हाइट मतलब जितना ऊंची थी वो 8 फीट की थी, और जितनी लंबी थी वो मशीन वो 51 फीट की थी, ठीक है. इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्योरली नहीं बोला है, क्योंकि इसका जो वेट है वो 5 टन है, और जो इसमें नंबर ऑफ़ वायर्स यूज़ करी गई वो 500 माइल्स यूज़ की गई. देन उसके बाद जो ये ऊंचाई में इसकी क्या लेंथ थी, क्या था ऊंचाई में? 8 फीट इन हाइट एंड 51 फीट इन लेंथ. Okay, so this was the Harvard Mark I, which was built in partnership Harvard and IBM in 1944. This was the first one using digital computer which is developed in United States. Okay, but it was not a purely electronic computer because the machine weighted 5 tons and had 500 mils of wire. It was 8 feet in height and 51 feet in लेंथ. गेट इट? तो आप सबको समझ में आया व्हाट इज़ द हार्वर्ड मार्क आई? गुड स्टूडेंट, वेरी गुड. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट इज एनिक एंड यूनिवैक, ठीक है. एनिक एंड यूनिवैक, these are the first fully functional programmable electronic computers which are developed in United States. क्लियर? ये हमारे एनिक और यूनिवैक जो हैं हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1 के हमारे लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसे इनको हमें रिवाइज करना है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एनिक एंड यूनिवैक, ठीक है. अब हम इनको ये बोल रहे हैं कि ये हमारे फुल्ली फंक्शनल प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं, ठीक है. अब ये क्यों हैं, ठीक है, इसमें हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी फुल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं कि फुल फॉर्म क्या होती है. पहले आप सोचिए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनिक एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक, ठीक है. तो आई गिव यू ओनली 5 सेकेंड. So yes students, your time is finished. So let's start with ENIAC and UNIVAC. ENIAC. The full form of ENIAC is Electronic Numerical Integrator and Calculator. Electronic Numerical Integrator and Calculator. First 1 minute students. Yes, the ENIAC full form is ENIAC is
electronic numerical integrator and calculator. This one is the full form of ANIC. Electronic numerical integrator and calculator is the full form of ANIC. Was the first fully functional electronic digital computer. ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये फर्स्ट फुली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जो डेवलप हुआ था टू बी बिल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, यूएस में ये डेवलप किया गया था। तो हम बोल सकते हैं जो एनिक है वो फर्स्ट फुली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जो बिल्ड किया गया टू द बिल्ड इन यूनाइटेड स्टेट, दैट इज़ द यूएस। इट वाज समवॉट सिमिलर टू अर्लियर कंप्यूटर। ये सारे यूनिवैक और एनीवैक जो है, एनिक और यूनिवैक जो हैं वो हमारे जो पीछे हमने कंप्यूटर्स पढ़े हैं ABC, Z3, ये सब उनकी तरह सिमिलर हैं, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज दैट बट वॉज कंसिडरेबल लार्जर एंड मोर फ्लेक्सिबल। ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं और बड़े होते हैं। देखो आप देख रहे हो ना, ये दिस इज द एनिक एंड यूनिवैक। नाउ द नेक्स्ट इज द यूनिवैक। यूनिवैक इज द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक इज द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वॉज द फर्स्ट कमर्शियली कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड इन USA। अब हमारे पास कमर्शियली, अभी तक तो हमारे पास क्या था, फुल्ली फंक्शनली यूज़ था, लेकिन अब कमर्शियली हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कंप्यूटर हमने फर्स्ट डेवलप कर लिया, दैट इज़ द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, एंड डेवलप बिल्ड कहाँ हुआ, मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ, इन USA। समझ में आया। तो जो एनीवैक था वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था, वॉज फर्स्ट फुली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर टू बी बिल्ड इन यूनाइटेड स्टेट। इट वॉज somewhat similar to earlier computer but was considerably larger and more flexible. But universal that is the universal automatic computer, it is the UNIVAC, was the first commercially computer manufactured in the USA. Okay, so basically in your syllabus this is enough for ANIC and UNIVAC. Okay student, so today we finish the revision of first chapter and the home is time to homework. You have to revise full chapter in detail. Okay, so stay home, stay safe. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.